years to this platform, that you've been a part of this journey so long. How does it feel to be back this season? Honestly, it doesn't feel like I'm coming back. I've always sort of been a part of the Z family और इतने सालों से. In fact, आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सारेगामा पा बना when I joined the show way back in 2002. तो इतनी एक close connection है. तो घर वापसी वाली बात हो रही है. But it didn't feel like I went anywhere. Lovely. Richa ji, you have just done the adult season and you're already back with the kids season. So were you that infectious that we couldn't let you go, or what was it? एक्चुअली उसको उल्टा कर देते हैं. मैंने ही कहा कि मुझे नहीं जाना. बहुत बहुत मज़ा आ रहा है और इट फील्स रियली ग्रेट कि इतने बड़ा मंच है. दिस इज़ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द न्यू टैलेंट्स. और जैसा कि अभी आपने बोला कि एडल्ट सीज़न किया, उसमें सभी बहुत टैलेंटेड बच्चे थे. और इसमें तो हम लोग कुछ एपिसोड शूट भी कर चुके हैं और हम लोगों ने बहुत से यंग टैलेंट, छोटे छोटे बच्चे, कई तो अनबिलीवेबल टैलेंटेड हैं कि हम लोग सब के सब ऐसे मुंह खुले के खुले रह गए, ये कैसे पॉसिबल है. तो बहुत अच्छा लग रहा है और बस लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर एंड मोर गुड एंड ग्रेट टैलेंट. Absolutely, Richa ji. Looking at the hunk standing on the leftmost corner of the stage. It's just that when I have a shower, I look this good. Oh. So Amal, just tell us what it feels like to be making your, it's a reality judging debut in that sense for you. Okay, for the first time on reality TV, it's like really unreal for me. And unbelievable क्योंकि मैं almost 14 years का था जब and Arman was about 9 when he was part of Saregama Little Champs as a singer. And Shan sir was hosting that season जहाँ से Arman select होके आया था. 2006. Yes, I just finished my 10th. And I want to say a very special thing कि काफ़ी reality shows होते हैं, ऐसे competitions आजकल हर channel पे एक, दो, तीन shows होते हैं. But इस show की एक history है, 25 years का एक respect है, magic है कि यहाँ से शेखर रवजियानी, सोनू निगम, शान सर, श्रेया, अरमान, कितने और talented singers आके they have made their mark in Bollywood. And more importantly, as a family, जब अरमान इस show पे था तभी V4 came closer and became like a fantastic 4 team. You know, तो काफ़ी चीज़ें emotional भी है. Me standing here with such amazing legends, talented musicians, singers, and it seems unreal for me. And for me it's just a happy, very happy moment. मेरे parents के लिए it's very unreal and crazy क्योंकि they never thought कि you know मुझे 4-5 साल ही हुए डेब्यू करके एज अ म्यूजिक कंपोजर. तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक इतना बड़ा शो मुझे मिला है. सो आई एम रियली हैप्पी. आई एम जस्ट ऑनर्ड. On that happy note, it's obvious we're going to have a lot of fans in the room, you know. For you. They're no, all for yours. you. Look at They're them all cheering for you. They're cheering for Ravi, right? Zordar taliyan for Anuj. Thank you so much, Ravi. Ravi, how does it feel after such a successful stint in Jamai Raja, coming back onto what is clearly going to be a huge hit on reality television? What does it feel like? Is the excitement really palpable? The excitement is sinking in with every second that I've been associated with Saregama, right after the first meeting where the show was discussed with me, to the first episode, and now at the press conference. And it's just the fact that there are children here, you know, any way that just the energy of these children will elevate the show. And other than that, you know, I've literally found a family here. And in just a couple of days of working here, I found Shan, I've found Amal, I found Richa, I found Aparna. I found this team that's already feeling like my own. और वो जो घर वापसी वाली बात है ना, वो वाकई मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वापस चला आया हूँ. जी का जमाई अपने मायके चला है ऐसा. On that happy note, नेपाल से आया हूँ और सब मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ. और मैं बहुत खुशी हूँ, इतना दूर से आया हूँ और अपना बेस्ट दूंगा. बहुत मेहनत करना है मुझे और भी अब इतना बड़े स्टेज में आके बहुत कुछ मेहनत करना है मुझे और भी बहुत अच्छा गाना है. सबको मैं प्रॉमिस करूँगा कि इससे भी ज़्यादा और भी अच्छा करने के लिए सबको प्रॉमिस बोलता हूँ. बहुत अच्छा गाया. आई वांट टू टेल एवरीवन कि ये लड़का नन्ही नन्ही आँखों में इतने बड़े बड़े ख्वाब लेके आया फ्रॉम नेपाल. एंड इट प्रूव्स कि
आवाज़ से, ये कोई रिसाइटेड रिहर्स्ड लाइन नहीं है, मैं बोल रहा हूँ तो टेंशन मत ले, कहीं देख रहा नहीं हूँ. अपनी आवाज़ से ही इज़ प्रूवन कि बाउंड्रीज कैन बी ब्रोकन. एक आवाज़ वहाँ से निकली उन माउंटेन से और यहाँ तक आके बस चुकी है. आई थिंक हर एक जजेस के साथ यही फीलिंग है. इसके पास सुर ताल के साथ साथ इतना फील है, इट्स अनबिलीवेबल. एंड आई वांट टू से अ बिग थैंक यू एंड टेल एवरीवन, स्पेशली प्रीतम के स्कूल से और उनके स्कूल टीचर्स, प्रिंसिपल, सबको, क्योंकि दे हैव ऑल कलेक्टेड मनी, कंट्रीब्यूटेड सो दैट ही कुड कम टू मुंबई एंड बी पार्ट ऑफ सारेगामापा लिटिल चैम्प्स. एंड ये लिटिल चैम्प नहीं है, बहुत बड़ा चैम्प है, क्योंकि इसकी आंखों में देखो, यू कैन सी व्हाइल सिंगिंग ऑल्सो ही अटैक्स द नोट्स, यू नो, ही लुक्स कि आई विल ग्रैब होल्ड ऑफ दैट नोट्स. मुझे, आई जस्ट लव हिम. आई थिंक इंडिया विल एक्सेप्ट हिम एंड गिव हिम सो मच लव. गॉड ब्लेस यू बेटा, अमेजिंग. थैंक यू अमन. और आपने इनका परफॉर्मेंस देखा. मिथिला जब से इस शो से जुड़ी है तब से मैं इसका फ़ैन हो गया. उसके कई वजह. एक तो ये कि इतनी छोटी सी उम्र में 200 से ऊपर शोज कर चुकी है, 60 से ऊपर अवार्ड्स जीत चुकी है, ऑल इन दिस लिटिल एज ऑफ 14 ईयर्स समथिंग. और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये अपने दिल से मानता हूँ, हम लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं इतने सालों से, कि हम लोग जहाँ भी पहुँचते हैं, जो भी ऊंचाई, जो भी कमी पेशी के बाद भी जो भी हम अचीव करते हैं, वो हमारी किस्मत की वजह से. और हमारी किस्मत किस चीज़ से बनती है? वो हमारी कर्मों से बनती है. ये बच्ची 14 साल की उम्र में 4 बच्चों की एजुकेशन को ऑलरेडी स्पॉन्सर कर चुकी है. सो विद अ हार्ट लाइक दैट, ये तो लाजमी है कि आज नहीं तो कल ये बड़ा मंच उसे बुलाने ही वाला था. एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी हैव समबडी लाइक मिथिला माली विद अस. गॉड ब्लेस यू बच्चे. जस्ट ऑलवेज बी लाइक दिस. ये लग रहे हैं ना कि ये सूत्री बम नहीं है, ये सारे 1 बाय 1 बड़े बड़े बॉम्ब आ रहे हैं. उसके लिए We have one more. I उसके don't know लिए whether we have थोड़ा time. सा इंतजार कीजिए, एक तो और बॉम्ब आने वाला है. और वी हैव लॉट्स ऑफ बॉम्ब लाइक हिम, बट यू हैव टू वेट टिल 9th Feb, क्योंकि ये शुरू हो रहा है 9th Feb से. Yes. एवरी सैटरडे संडे 9 PM. ट्यून इन भी हो गया. थैंक यू रजत जी. बिफोर आई लीव, पहली बात तो एक बार जोरदार तालियां इस बच्चे के जज्बे के लिए. रीज़न कि जब हम सबको पता चला इनकी स्टोरी के बारे में, ये एक बहुत ही छोटा सा गांव है गाज़ीपुर, वहाँ से बिलोंग करते हैं. और इस म्यूज़िक के लिए ये अपना पूरा परिवार सहित शिफ्ट हो गए दिल्ली में. और किसी मजबूरी के कारण या किसी भी परेशानी के कारण पूरी फैमिली को लौटना पड़ा उनके गांव गाज़ीपुर में. पर ये नहीं गए, ये अकेले दिल्ली में रह गए. और कुछ वक्त ये अपने मामा जी के साथ रहे. लेकिन इनकी जज्बे को इसलिए आपको बोल रही हूँ ताली बजाई कि इनका डिसीजन था. ये चाहते थे कि मैं किसी के ऊपर कोई बर्डन नहीं बनना चाहता हूँ, बोझ नहीं बनना चाहता हूँ. इतनी छोटी उम्र में कोई बच्चा ये सोच कैसे रख सकता है? ये जज्बे को सलाम है. और इस उम्र में इन्होंने ये सोच को बदलते हुए कि मैं अपने पैरों पे खुद खड़ा होऊंगा, अकेले एक कमरा किराए पे लिया और दिल्ली में अकेले रहते हैं. तो जब ऑडिशन हो रहा था तो मैंने पूछा, ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने पैरों पे खड़े हो गए, लेकिन उन पैरों पे खड़े होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती पैसा. वो आप कहाँ से लाते हैं, कैसे लाते हैं? क्योंकि जीविका चलाने के लिए सबसे ज़रूरत उसी की ही ज़्यादा होती है. तो इन्होंने जो जवाब दिया, मैं तो गदगद हो गई. रीज़न क्योंकि इनकी और मेरी कहानी एक जैसी हो गई. इन्होंने मुझे बोला कि मैं वहाँ पे रोज़ एवरी सैटरडे संडे जागरण करता हूँ, वहाँ से पैसे कमाता हूँ और फिर मैं अपनी पढ़ाई पे वो पैसा खर्च करता हूँ और अपने रहन सहन को ऐसे ही चलाता हूँ. तो खुद कमाते हैं, फिर पढ़ते हैं, अपना घर चलाते हैं और खुद ही खाना भी बनाते हैं इतनी सी उम्र में. सो सल्यूट टू हिम एंड ऑल द किड्स. सबकी एक अपनी कहानी है. तो मैं चाहूँगी आप बहुत सारा इनको अपना आशीर्वाद दें. और अब परिवार में भी सब बहुत खुश हैं. बताओ, फ़ोन किया था घर पे तो क्या बोला सबने? सब जान चुके हैं और सब खुश हैं, बहुत खुश हैं. So just give him your blessing and all the kids who are participating in this show. Thank you so much. यकीनन सोच रहे होंगे कि such a confident performer, such a strong voiced
बॉइस्ट्रस सी एक इनमें एक एनर्जी है, और स्कूल में भी शायद ये मतलब सबको डोमिनेट करती होगी विद हर स्ट्रेंथ एंड माइट, लेकिन इनकी कहानी भी कुछ अलग सी है जो हमें दिख रहा है या जो हम महसूस कर रहे हैं उससे बहुत अलग। क्योंकि जब आस्था स्कूल में थी एक ही पैशन था, ऑब्वियसली सिंगिंग, म्यूज़िक, और जहाँ भी आस्था जाती थी स्कूल में ब्रेक में गाना गाती रहती थी। और लेकिन तब जैसे गाने बन रहे थे या जो गाने गुनगुनाती थी उस स्केल में, उस रेंज में, उस स्टाइल में वो नहीं गाती थी, वो अपने हिसाब से उस गाने को गाती थी। थोड़ी सी लो में उसकी आवाज़ अनकन्वेंशनल थी, जिस वजह से स्कूल में जब भी म्यूज़िक कॉम्पिटिशन या कुछ चीज़ें होती थी, शी वॉज नॉट गिवन द प्रायोरिटी। इनफैक्ट उनके क्वायर में उनको हमेशा और पीछे खड़े रहो और पीछे खड़े रहो, क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बोल्ड है, हैवी है। और इस बात से इमेजिन समवन हुज गॉट सच पैशन टू डू समथिंग, उसको आप बार बार डिस्करेज करें। कहीं ना कहीं आस्था ऑलमोस्ट लॉस्ट होप कि नहीं, म्यूज़िक शायद मेरे लिए नहीं है। थैंक गॉड आस्था को घर में बहुत सपोर्ट मिला पेरेंट्स से, माँ बाप से, और उन्होंने कहा कि वी कैन टर्न दिस इनटू योर स्ट्रेंथ। और आस्था की जो अलग आवाज़ है वो आज आपने सुना, और ये सबसे अलग आवाज़ है, सबसे बेहतरीन आवाज़ है, एंड शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट फाइंड्स ऑफ दिस ईयर इन लिटिल चैम्प्स। और ये बात अच्छी है कि आस्था ने अपनी टैलेंट पर आस्था रखी और पेरेंट्स ने भी उन्हें सपोर्ट दिया, एंड टुडे शी इज़ हियर, कैन बी वन ऑफ द फाइनेस्ट वॉइसेस इन द कंट्री वेरी सून। तो बस आपका प्यार, आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए कि आस्था ने अपनी वो जो हिम्मत है वो नहीं हारी, and she's on to becoming such a confident performer today. Who could have believed it's the same girl who was being bullied and troubled in school? Huh? Amazing, amazing. So much, sir. Some amazing. करने में कितनी दिक्कत आती है, क्या अंतर है? दिक्कत तो आती ही नहीं जी, मेरा और दिक्कत का कोई नाता रिश्ता नहीं है। दिक्कत मैं जहाँ होती हूँ वहाँ मुझसे दूर भागती है। रीज़न ये है कि मैंने दिक्कत को कभी माना ही नहीं। दिक्कत, अगर आप दिक्कत को दिक्कत मान लोगे तो दिक्कत बन जाती है। बच्चों को टैकल करने में बहुत आसान है। मैं बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरा बहुत बड़ा परिवार है, बहुत सारे बहन भाई हैं हम, तो उन सब के बहुत सारे बच्चे हैं। तो किसी की मैं मासी हूँ, किसी की बुआ हूँ और किसी की बड़ी दीदी हूँ। तो मुझे उसी तरह से लग रहा है घर के ही बच्चे यहाँ सेट पे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, ये सारे म्यूज़िक में लव रेज हैं, म्यूज़िक से भरे हुए हैं और उनके साथ वही रिश्ता अपनाती हूँ जैसे अपने घर के बच्चों के साथ अपनाती हूँ, और कुछ खास नहीं। थैंक यू जी। हेलो, ओवर हियर।
My question is Aparna ji. Yeah. Aparna ji, Z is playing a catalyst role for the and nurturing the kids. Just want to know what is the future after this, like, you know. There are some children over the past few years, anyway, there are names I think Shan mentioned, somebody mentioned, where people like Kunal Ganjawala, lots of names that have come out from this platform. But going forward, what we're planning to do, and I've been discussing it at length with Amal, we're planning to start, we have the DSC Foundation, as you are aware, we do a lot of good work through that. So any children with talent and need some help in the future, we're planning to support them and make sure we help them along the way. Also, I've seen that, you know, the guy from Nepal, then Pritam. yeah, then there was a person, Das was there. Yes, So the Ritik. diction, you know, the language. And I just want to know that how you correct them and how, like, you know, because they speak, that guy Pritam was speaking Nepali when I spoke to him, but he sang the song very nicely, you know. So how you people work on that diction? Just want to know, inquisitive That's to know not that. my expertise, I have the worst So voice Shan, on I would earth, like Shan or anybody, Aman can speak about. No, when it comes to diction, it's very important, of course, but at the same time, it's not the be-all, end-all, because कई बार वो उनकी जो अपनी एक लहजा होती है, एक टोन होती है, उसमें भी एक मज़ा होता है, लेकिन of course काफ़ी हद तक हमें उसको करेक्ट करने में इतनी आसानी इसलिए होती है कि वो जिस गाने को सुन रहे हैं, उस गाने में डिक्शन करेक्ट है, तो जब वो गाने के सुर भी सुनते हैं, साथ साथ गाने की बोल भी, लिरिक्स भी सुनते हैं, and they get it right. There are many singers in our country, established, massive singers. अगर आप उनसे बात करें, you can clearly tell कि पंजाब से हैं, clearly tell कि बंगाल से हैं. उनकी बात करने की टोन बिल्कुल अलग होती है, लेकिन जब गाते हैं, तो उनकी हिंदी एकदम साफ होती है. तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हो जाता है. रिचा जी, जब भी आप गाते हो तो I always get goosebumps. That's, you know, the tone ये of सवाल yours. है आपका? नहीं, I'm complimenting her for that. Thank you so much. Hi Amal. Hi. Here. Here. कहाँ पे मैं आपको देख ही नहीं Yeah. सकता. Okay. Hi How are you? What's Amal, up? good yeah. So Amal, 2018 आप दोनों भाइयों के लिए बहुत ही अच्छा गया है, बहुत ही खूबसूरत गया. और 2019 के स्टार्ट में ही द वॉइस के साथ अरमान आ रहे हैं और आप लिटिल चैम्प के साथ आ रहे हैं, तो क्या कुछ माहौल है घर पर, क्या घर पे भी कुछ कंपटीशन जैसा माहौल है, और डब्बू सर का क्या कुछ आई रिएक्शन थिंक है? हम लोग दोनों में बहुत सुपर्ब राइवलरी होने वाली है, मज़ा आने वाला है. वो एक्चुअली में उसकी वॉइस है, पर अंदर से मैं भी लिटिल चैम्प हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. हेलो एवरीवन. कुछ अच्छा म्यूजिकल पूछ लेते हैं यार, ये तो चलो ठीक है. हेलो एवरीवन, दिस इज अमित फ्रॉम सिने स्पीक्स. आपके लेफ्ट साइड में अब मेरा सवाल मिस्टर शान से है. शान सर, 2002 में जब आप होस्ट करते थे इस प्रोग्राम को, इधर लेफ्ट हैंड साइड, नहीं वो फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे वैसे भी दिखाई नहीं देता. ओके. चश्मों के. सो जब आप होस्ट करते थे उस समय जो कंटेस्टेंट थे और आज जो बच्चे हैं छोटे, तो कितना फ़र्क है उनकी डेडिकेशन में और उनके जो लगन है आगे बढ़ने की? आई एम श्योर, मतलब अरमान भी उस समय थे जैसे हमें पता चला, तो क्या फ़र्क नज़र आया सर आपको? 2002 में जब पहली सीज़न हुई थी लिटिल चैम्प्स की, उस वक्त के काफ़ी सारे यादें हैं मुझे, क्योंकि मैं सिर्फ होस्ट नहीं था, काफ़ी हद तक उस टाइम पे होस्ट की बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग होती थी. मैं मतलब जिसे कहते हैं कि फ्लोर मैनेजर भी था, कोई बच्चा रूठ गया रो रहा है तो उनको भी समझाओ, कभी जजेस के बीच में, वो एक आदत सी हो गई है. हमारे जजेस के बीच में बहुत बड़ी जंग हो चुकी थी उस टाइम पे, एक के रूम में जाके उनको मनाओ, दूसरे रूम में जाके उसको मनाओ. तो बहुत सारी प्यारी प्यारी यादें हैं उस सीज़न की. और उस सीज़न के बाद मैंने ये डिसीजन लिया था कि मैं कभी किसी बच्चों की जो टैलेंट शो होती है ना, उससे मैं कभी खुद को नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने खुद देखा, जो बच्चों पर जो पेरेंट्स की प्रेशर थी. नहीं, बच्चों की जो लगाव है, बच्चों का जो प्यार है म्यूज़िक से, वो वही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आया है. तभी भी बच्चे उतने ही डेडिकेटेड, उतने ही पैशनेट थे अपने म्यूज़िक के लिए, अभी भी बिल्कुल उतने ही हैं, चाहे जितना भी नया टेक्नोलॉजी आ जाए, जितने भी आज के तारीख में बच्चों के लिए डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये जो बच्चे मैं देख रहा हूँ, दे आर सो कमिटेड टू म्यूज़िक. तो वो बात तो सेम है, लेकिन काफ़ी बाकी चीज़ें जो हैं वो बहुत चेंजेस आई हैं.
क्योंकि वो नया नया फर्स्ट स्टेज है। कुछ भी चीज़ जब शुरू होती है ना, तो उसमें कुछ हर नए शहर में कुछ रातें खड़ी होती हैं ना जी। अच्छा, उसके बाद धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो अब बहुत बदलाव आया है। अब बच्चों के पेरेंट्स में मैं एक बिल्कुल अलग एक पॉजिटिविटी देख रहा हूँ। बच्चों में एक सीखने की क्षमता और एक सीखने की इच्छा, मोर देन जीतने की या फिर सक्सेसफुल होने की इच्छा, वो मैं देख रहा हूँ। हम जजेस भी किस तरह से बच्चों से पेश आते हैं, हमारी जो टीम है, जो काउंसलर्स है, इट्स वेरी डिफरेंट नाउ। इट्स वेरी वेरी, और टाइमिंग बहुत ज़रूरी बात यह है कि अभी टाइमिंग भी आपका वेरी स्ट्रिक्ट, कि हम बच्चों को ज़्यादा देर रात तक अलाउ नहीं करते हैं शूट करना। जी, मेरा सवाल एक और है आप तीनों जजेस से कि ये जो आप ऋचा जी ने बोला हमारे छोटे बॉम्ब है ये, तो इन बॉम्ब को खोजने में कितनी मेहनत करनी पड़ी? कुछ और भी होंगे जिनको आपको मतलब इनको आगे लाने के लिए उनको पीछे रखना होगा, तो कितना मुश्किल हुआ आप लोग को इनको सेलेक्ट करने में? आई थिंक बहुत मुश्किल भी होता है, आसान भी होता है, दोनों है, 50-50 है। और हम लोग, आई थिंक मैं दोनों जजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाहता हूँ कि जिस दिन की परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से हम कंटेस्टेंट को चुनते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पहले उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की हो, पर उस दिन के हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है वो बहुत मैटर करती है। एंड ऑब्वियसली दोनों जजेस इतने दिग्गज सिंगर, इनके तरफ से एक सिंगिंग कंट्रीब्यूशन में सिंगर वाइज वो इतना इमेंस हेल्प करते हैं सब बच्चों का। मेरे तरफ से मैं एक म्यूज़िक कंपोज़र होने के नाते मैंने प्रोनाउंसिएशन या थोड़ी बहुत डिफरेंट बातें जो, यानी उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग अलग होती है और स्टेज पे खड़े रह के गाना अलग होती है, तो नो वो सब चीज़ें हम लोग सब गाइड करते हुए एक कंटेस्टेंट को चुनते हैं। और जो कंटेस्टेंट उन सब मैटर्स में टिक मार्क A1 आता है, वही कंटेस्टेंट आगे बढ़ता है। वैसे मैं मुझे ऐसा लगता है कि इस बात का एग्जैक्टली सही जवाब शान से बेहतर कोई दे नहीं सकता, मैं भी नहीं दे सकती हूँ। हम तो जो अभी अभी चल रहा है वही बता सकते हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी होती है, वो शान आपको बताएंगे। पुराने खिलाड़ी हैं ये, पुराने खिलाड़ी, ये अच्छे से बताएंगे। नहीं, 23 साल से हर साल किसी ना किसी टीवी शो से जुड़ा रहा हूँ, तो लेकिन इसमें इतना तजुर्बे की बात नहीं है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली एक बात है कि कई लोग इस बात से ताज्जुब हैं, दुनिया ताज्जुब है कि सबसे अच्छी टैलेंट, सबसे बेस्ट टैलेंट कंसिस्टेंटली हमेशा ZTV के प्लेटफॉर्म में कैसे आती है। तो ये तो हम जिन टैलेंट को देख रहे हैं वो फाइनल 70-60 जो भी फॉर्मेट अलाउ करती है उनको हम सुनते हैं, लेकिन इनको अलग अलग देश के कोने कोने से छांट के जो हमारी जो स्काउटिंग ZTV की जो टैलेंट स्काउटिंग टीम है, आई थिंक दैट इज़ द रियल बैकबोन एंड द रियल रीज़न वाई साल दर साल हमेशा, आप इसे TRP कहें या पॉपुलैरिटी कहें, ZTV की टैलेंट शोज़ हमेशा हाई रही हैं। ये कारण है। और दूसरी बात ये है कि हम वो एक्स फैक्टर या उस चीज़ पर कम, टैलेंट पर, सिंगिंग पर, आवाज़ पर, इनकी फ्यूचर, किसकी फ्यूचर ज़्यादा ब्राइट है, किस में ज़्यादा सीखने की सोच है, क्षमता है, उन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं। कोई क्यूट सा बच्चा है, चलो इसको आगे बढ़ाएं, ये बात मतलब ऑब्वियसली अगर क्यूट सा बच्चा अच्छा गा रहा है तो इट्स एन एडिड, लेकिन सिर्फ क्यूट है इस वजह से उसको हम रखें, ऐसा नहीं करते। तो ये चीज़ें भी कुछ हैं जो आई थिंक हैज़ मेड आवर शो यूनिक एंड स्पेशल। रवि, या आफ्टर मतलब जी से आपका गहरा ताल्लुक है, पहले से यू हैड डन जमाई राजा, तो इस बार आप छोटे बच्चों से किस मतलब तरह से एक जमा लेंगे अपना एक जज्बात और एक कनेक्शन विद द किड्स, बिकॉज यू नीड टू ऑल्सो हैव नॉलेज ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इन हैंडलिंग द चिल्ड्रन इन अ वेरी सेंसिटिव वे, तो किस तरह से आप यू विल बी हैंडलिंग, कैन यू जस्ट शेयर विद दिस? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। सो आपने जवाब खुद ही दे दिया। इट्स ऑल अबाउट सेंसिटिविटी, और वो बच्चे हों या बड़े हों, एक होस्ट की एक ही रिक्वायरमेंट होती है और वो है वार्मथ। कि हर बच्चा जो है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो रिजेक्शन का सामना करे, वो अपने जीवन में फेलियर देखे, लेकिन ये मेरा काम है उनको ये बताना कि ये फेलियर नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। तो जिस तरह वो इस फेलियर को या इस रिजेक्शन को सेलिब्रेट करें और उनके पास मौका है हमेशा, एंड बीइंग अ चाइल्ड इज़ ऑल अबाउट दो सेकंड चांसेस। सो एंड दैट्स व्हाट द शो इज़ अबाउट। म्यूज़िक से पढ़ेंगे हम, आप
वो रिजेक्शन या वो एक्सेप्टेंस काउंट नहीं करता, बढ़ना काउंट करता है, एंड दैट्स व्हाट आवर जॉब इज टू टेल देम दैट दे आर ग्रोइंग. अरमान जी एक क्वेश्चन आपसे. वन क्वेश्चन. अरमान अरमान वो नहीं अरमान दूसरे शो में. वॉइस पे पहुंच जाओ आप, नो प्रॉब्लम. वो इसलिए आपसे क्योंकि आप चाइल्ड उनको समझा ही नहीं है. अरमान मेरे छोटे भाई का नाम है. अगर आपको उससे बात करनी है उसका मोबाइल नंबर मैं आपको भेज देता हूँ. मैं उसके बड़े भाई से एक सवाल पूछना चाहता हूँ. हाँ तो वो मैं हूँ. मेरा नाम अमाल मलिक है. पूछे. सिंस आप भी चाइल्ड आर्टिस्ट रह चुके हैं, डिसाइड कर लो दोनों साथ में. एक सेकंड ड्यूएट चल रहा है. बाजी एक सेकंड, वो कुछ पूछना चाह रहे हैं अमाल से. हाँ जी. Yeah, this question is for Aparna ma'am also, Shan, this Amal. Amal. Don't worry. And Risha. Acha, now this recently India's Got Talent became pretty successful because of the kind of talent they had on board. Now that show, which was supposed to go for 3 months, went on for practically for 49-50 episodes as such. Because they could not afford to stop it. They had such kind of a TRP as such. Now what I heard just now, you had 4 singers in here. They are all firebrand singers, all different genres. Now what will be the benchmark for the selection of the candidates as such? Do you give the songs to the participants or they sing on their own as such? So what will be, how will you be judging? What will be the benchmark? Because what happens, these talents are not, they have quite accomplished talent, absolutely, ready for the show, straight away. Now there are so many other talents which may be coming, they may be raw as such. They may be not be as good as the kind of talent which you have shown today. So how will you balance it as such? मुझे लगता है कि आपके इस सवाल बहुत अच्छा सवाल है. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, सो थैंक यू. देखिए इस शो में एक हिस्ट्री है कि आपको हम लोग ने अभी सिर्फ टीज़र दिखाई है, जो 4 बच्चे, बाकी के जो हमने चुने हैं आप इन पे भी भारी पड़ने वाले हैं. ये मैं आपको कह देता हूँ. ये जब शो शुरू होएगा तब आप देखोगे. ये सिर्फ एक ट्रेलर था, बट एक चीज़ होती है गाइडेंस. जो हमारे पास सीनियर दोनों जजेस है, मेरा तो फर्स्ट डेब्यू है, तो मैं एक म्यूज़िक कंपोज़र के हिसाब से जितनी चीज़ें मैं उन्हें प्रोवाइड कर सकता हूँ वो मैं करूँगा. आई एम गोइंग टू बी द एल्डर ब्रदर ऑन देयर शो एंड बी देयर. ऑनेस्टली दिल से कहूँगा उन्हें जो भी मुझे सही गलत लगे. एंड बैलेंस करना, आई थिंक ऐसी कंपटीशन होना ना बहुत ज़रूरी है. और ये पिछले 3 सीजन्स मैंने फॉलो किए लिटिल चैम्प्स के. उसके बाद ये सीज़न यहाँ से यहाँ है इन टर्म्स ऑफ टैलेंट. मैं भी मानता हूँ कि आपने जो देखा है वो उन बच्चों में रेंज है एंड दे आर रेडी कि आज आप उन्हें कोई भी स्टेज शो पे डाले एक एस्टैब्लिश सिंगर के साथ भी, तो वहाँ उन लोग खड़े रह के अपना नाम बना सकते हैं. ये मैं मानता हूँ. बट ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनमें ये बात है, जिन्हें हमने चुना है, जहाँ ट्रेनिंग यहाँ दोनों जजेस से मुझसे मिल रही है. और कहीं ना कहीं सबकी अपनी एक यूनिक क्वालिटी होती है. इनके पास जो है वो उनके पास नहीं, उनके पास जो इनके पास नहीं है. तो हम किसी को कहते नहीं कि आप ऐसा गाओ इसके जैसा या आप इस स्टाइल को अपनाओ. उनकी मर्जी है, उनके सॉन्ग सिलेक्शंस होते हैं. मैं शायद कोशिश हम लोग करेंगे कि एक जजेस अपने हिसाब से कभी एक चैलेंज थ्रो करेंगे कि आप ये गा के दिखाओ. शायद आप राजस्थानी फोक गाते हो तो सडनली उसको कोशिश करेंगे कि आप पॉप सॉन्ग गाओ. मुश्किल है, मैं मानता हूँ कि जॉनर जंप करना. और पर आज की रिक्वायरमेंट मैं मानता हूँ शान सर एंड रिचा मैम विल बी अग्रीइंग विद मी कि कभी कभी क्या हो जाता है कि आप लिमिट हो जाते हो एक जॉनर में. तो हम लोग किसी को कहते नहीं कि भाई तू ये गा रहा है तो यही गाते रहे. ज़रूरी है कि यू जंप फ्रॉम रॉक टू पॉप, पॉप टू जैज, जैज टू R&B टू राजस्थानी फोक टू हिंदुस्तानी घराना म्यूजिक, सब कुछ. पर अगर आप सब करने जाओगे ना तो आप मास्टर ऑफ नन हो जाते हैं. तो जो उनकी नेचुरल कॉलिंग है, उनकी डिसीजन उनके साथ, पहली उनकी डिसीजन, उनकी चॉइस, गाना उनके चॉइस का होता है. पर एक मैं चाहता हूँ, आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो वी विल इनकॉर्पोरेट दिस, विल ट्राई आवर बेस्ट कि जहाँ हमें लगता है कि यानी ही हैज़ द कैपेसिटी टू बी अ डाइवर्स सिंगर, तो हम कोशिश करेंगे कि जो कंसिस्टेंटली इंडियन क्लासिकल गाने गा रहा है उसे सडनली एक रॉक गाना दे देंगे. तो ये सब चीज़ें होंगी. शो विल इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द टैलेंट दैट वी हैव एंड आई थिंक वी हैव प्लेंटी ऑफ टैलेंट. और वैसे भी किनारे पे खड़े रहेंगे तो मंजिल पे कैसे पहुंचेंगे, है ना. और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी म्यूज़िक टीम, पूरी म्यूज़िकल टीम है ZTV की और सारेगामा लिटिल चैम्प्स की, जो पूरी म्यूज़िकल टीम है, आनंद शर्मा जी और अनुज कपूर जी, उनके साथ भी एक और टीम है जो पूरी ये बच्चों की टीम को
ट्रेन करते हैं, चाहे वो रियाज हो, चाहे इवन प्रोनाउंसिएशन ऑफ द लिरिक्स, उनका शब्दों को सही तरीके से डिलीवर करना और सही तरीके से गाने को समझ के, उसके मूड को समझ के गाना प्रेजेंट करना। तो बच्चे अकेले नहीं हैं, हम लोग तो बहुत बाद में हैं, लेकिन हमसे पहले वो पूरी टीम है। हम तो शूट वाले दिन उनके साथ मिलते हैं या बीच में उनके पास कभी विज़िट कर लेते हैं, लेकिन वो टीम उनके साथ 24/7 होती है जो उनको हर तरह की ट्रेनिंग देती है। रिचा जी, ये जो बच्चे आज गा रहे हैं, बड़ा अच्छा गा रहे हैं, कल को इनकी आवाज़ भी चेंज होगी जब बड़े होंगे। तो आप 3 जजेस बता सकते हैं कि उस समय इनकी आवाज़ में कितना फ़र्क पड़ेगा, सिंगिंग में फ़र्क पड़ सकता है या नहीं? मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ। मेरे केस में और मेरी केस ऐसा है कि आप लोगों को मैं प्रूफ एक बता सकती हूँ कि जब मैं आई थी तो मैंने पहला गाना 95 में गाया था, 96 में रिलीज़ हुआ था, और मुझे 23 इयर्स हो गए हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में। तो अगर वो पहला गाना आप जाके अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे, मोहब्बत ऐसी मेहंदी है, उस आवाज़ को सुनेंगे, और आज का जो भी मेरा लास्ट सॉन्ग आप सुनेंगे, फॉर एग्जांपल पद्मावत का गाना होली, तो आपको लगेगा ही नहीं कि मैं ही हूँ वो वाली आवाज़। वो चेंज तो ग्रो, वही बात हो गई, हमारी टैगलाइन है म्यूज़िक से बढ़ेंगे हम। तो हम इस उम्र में आके कैसा गा रहे हैं और तब उस छोटी उम्र में कैसा गाते थे, हम लोग छोटेपन से बड़े हो गए इस म्यूज़िक इंडस्ट्री। तो ऐसे ये बच्चे भी ऐसे ही बड़े होंगे जहाँ आज हम बैठे हैं। हो सकता है कल वो यहाँ पे आपके सवालों का जवाब दे रहे हों। Hello. Friends, this is going to be our last question of the evening. After this, you'll have them. Yeah. Okay, मेरा सवाल आप सब लोगों से है, जैसे कि जो बच्चे आए हैं अलग अलग शहरों से और अलग स्टेट्स नेशन से आए हैं, जैसे कि नेशन से आए, नेपाल से, क्या पाकिस्तान से भी ऑडिशन हुआ है, क्या वहाँ से भी आए? थोड़ा सा कुछ बताना है मैम। कैन यू ऐड, आप कुछ बताना चाहिए कहाँ का ऑडिशन हुए, क्या पाकिस्तान से भी आएंगे? नहीं, हम पाकिस्तान तो गए नहीं, वैसे हम नेपाल भी नहीं गए। प्रीतम के स्कूल ने, लाइक वी एक्सप्लेन टू, उसके स्कूल ने उसको स्पॉन्सर करके दे सेंट हिम टू द ऑडिशन। या अगर पाकिस्तान, श्रीलंका से कोई भी आना चाहे, दे कैन कैच अस इन द इंडियन ऑडिशंस एंड दे विल बी मोर देन वेलकम ऑन आवर शो। Thank you so much, guys. I'll sign off saying the bar is open. So just join us, guys. Thank you. Thank you. पूरे जितने भी बच्चे हम लोगों ने और हमारी पूरी म्यूज़िक टीम ने चूज़ किए हैं, और लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है ये देख के कि कहाँ से अलग अलग प्रांत, अलग अलग शहरों से बच्चे आए हैं और बहुत अच्छा गा रहे हैं। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। तो इस बार जजेस की बात करें, कौन कौन है और किस तरह, कहाँ से स्टेट से? अब तो पूरी दुनिया जान चुकी है, मैं हूँ और साथ में शान है और अमाल मलिक हैं। कितना मुश्किल होता है बच्चों के साथ ये करने को? बच्चे सब बच्चों के साथ कैसे मुश्किल हो सकता है? बच्चे इस धरती की सबसे खूबसूरत रचना, क्योंकि बचपन में उनको ना तो कोई कपट होता है, ना कोई छल होता है, ना कोई समझ होती है, चालाकी होती है, मासूम होते हैं। उनको जैसे मर्जी ढालो, कच्ची मिट्टी है, जिस रूप में डालो, जिस रंग में डालो, तो कोई मुश्किल नहीं आती, बल्कि और मज़ा आता है, क्योंकि उनकी छोटी मोटी शरारतें, छोटा मोटा नटखटपना, तो बहुत मज़ा आ रहा है। और जब इतना अच्छा गाते हैं तो दंग हो जाते हैं हम लोग। उनको जज करने की बात करें, अगर 4 बच्चे हैं तो काफ़ी मुश्किल। 4 नहीं है जी, नहीं 15 बच्चे। 15 में जज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि सब प्यारे लगते हैं। बिल्कुल प्यारे लगते हैं, लेकिन हम लोग समझदार हैं, वो बच्चे हैं, तो हम लोगों को ये डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। एवरी वीक की एक जाएगा, विनर एक ही बनेगा, तो उसका सबको सामना करना पड़ेगा हर हफ्ते। जो बेहतर परफॉर्म करेगा, बेहतर गाएगा, वो उस हफ्ते रह जाएगा। इसके दौरान कहीं ना कहीं आपको बचपन की यादें आती हैं? बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं आती। मैं यहाँ पूरा बचपन जी रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि काश मैं भी बच्ची होती। मैं तो ऑलरेडी बच्चों के जैसे बनी हुई हूँ, वहाँ पे बच्चों के साथ दोस्ती कर ली है और इंजॉय कर रहे हैं हम लोग, ये समय को बहुत अच्छे से बिता रहे हैं। ज़्यादातर गाना गुनगुनाएं।